اٹھو کہ حشر برپا نہ ہوگا پھر کبھی، اٹھو کہ حشر برپا نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا، دوڑو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ گزشتہ دنوں میں اتر پردیش ATS نے مولانا کلیم صدیقی صاحب، مولانا عمر گوتم صاحب اور مولانا جہانگیر ندوی، ان 3 عظیم شخصیتوں کو جو علماء دین ہے ان کو گرفتار کیا ہے بغیر کسی الزام کے، اور ان پر جو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ دھرم پریورتن کروا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ حالانکہ اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرنا، اس کو ماننا، یہ ہمارے سنویدھان نے دیا ہوا حق ہے، اور یہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس ویرودھ میں، اس گرفتاری کے ویرودھ پورے سنویدھان پریمیوں نے اور دیش کی سیکولر جنتا نے راستوں پر اترنا چاہیے۔ آج پربھنی میں 24 سپٹمبر کو پربھنی کے اپنا کارنر پر آل انڈیا امام کونسل کی جانب سے اتر پردیش میں کی گئی گرفتاری کے ویرودھ میں اور انہیں فوری رہا کرنے کی مانگ کو لے کر ایک نویدن یہاں پر پربھنی ضلع ادھیکاری کو دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ پربھنی شہر کی مشہور سماجی سیاسی قومی شخصیت سید خضر صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خضر بھائی، جیسا کہ آج یہ نویدن یہاں پر دیا گیا آل انڈیا امام کونسل کی جانب سے اتر پردیش میں جو گرفتاریاں ہوئی ہے ان کو فوری رہا کرنے کے لیے، اور یہاں پر تمام لوگوں نے آج یہاں موجود ہو کر نعرے لگائے، اور BJP گورنمنٹ جو اتر پردیش کی ہے ان کے ویرودھ میں نعرے لگائے گئے، اور ایک ظلم ہو رہا ہے یہ دکھایا گیا، اور نویدن ضلع ادھیکاری کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ آپ کیا کہنا چاہیں؟ الحمدللہ، ہم لوگوں کی یہ مانگ ہے، مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک ہندوستانی نہیں بلکہ پورے دنیا کی ایک وائس شخصیت ہے کہ جو امن اور پیس کا کام کرتے ساری دنیا میں جا کر، اور ایسے علماء دین کو سر عام اٹھا کر ذیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں نرک اور سورگ میں جانا ہے، وہ یہ باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ کچھ سیاسی ذہن اور سنگی سوچ رکھنے والوں کو مولانا کافی دنوں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ UP کا جس طریقے سے آج ماحول ہے پورے ہندوستان کے اندر، پورا ہندوستان ایک طرف ہوگا اور UP کے حالات ایک طرف ہو گئے، محض خالی اب اقتدار میں آنے کی خاطر یہ لوگ جو گندی سوچ رکھ کے آئے دن، پہلے تو ایک نوجوانوں پہ ٹرائل چلایا ان لوگوں نے، کافی تعداد میں نوجوانوں کو ذیلوں میں بند کیا، اس کے بعد بھی یہ لوگوں کا سلسلہ تھما نہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہمارے مسلم پولیٹیشین کو مسلم سیاست ختم کرنے کے پیچھے یہ جو لوگ طاقت سے لگے، جیسے کہ آپ سید شہاب الدین صاحب کو کیا حال کرا ان لوگوں نے، اعظم خان صاحب کا ابھی حالیہ دن کا جو معاملہ چل رہا، اعظم خان صاحب کا کیا حال کیا، ویسے مختار انصاری صاحب، عتیق احمد صاحب اور کئی ہمارے باہوبلی جو لیڈر ہے UP کے اندر، یہ لوگ پوری طاقت سے اقتدار میں آنے کے بعد پوری طاقت سے ان لوگ بدلہ لے رہے ہیں، مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ اوپر والے کی طاقت ان سے بڑی ہے۔ یہ لوگ ہماری سیاسی طاقت ختم کر سکتے ہیں اور مسلم قیادت کو یہ لوگ کبھی مرتے دم تک ختم نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کی یہ ہندوستان گورنمنٹ سے مانگ ہے، مودی حکومت سے ہم لوگ یہی مانگ کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے جلد یہ حالت پہ آپ لوگ قابو لائیے کہ بے گناہ علماء دین کو، بے گناہ نوجوانوں کو، بے گناہ سیاسی لیڈروں پہ آپ جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، جلد سے جلد آپ لوگ اسی روکنا چاہیے۔ اور آج علماء کونسل کی طرف سے پربھنی کے مولانا ابوالکلام آزاد چوک پہ ایک دھرنا دیا گیا تھا، کافی سارے اس میں لوگ شریک تھے۔ یہ ایک ہم لوگوں کی پربھنی لیول پہ پہلی ایک شروعات ہے علماء دین کی طرف سے، اگرچہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ نہیں تھمتا تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری طاقت سے بال بچوں کے ساتھ پہ ہم لوگ روڈ پہ ذیل بھرو ہر طریقے سے ہم لوگ روڈ پہ آنے کے لیے تیار ہے۔ میں اتنا ہی کہہ کر یہ خط اختتام کرتا ہوں۔ السلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، ساتھیوں، آج ہم لوگ جو جمع ہوئے، مولانا صدیق صاحب کو اللیگلی طریقے سے ڈیٹین کیا گیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے پورے ہندوستان کے اندر امن اور سکون کا پیغام دیا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی آپ لوگ جب کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو واقعی میں معلوم پڑے گا کہ گنگا جمنا تہذیب مولانا کلیم صاحب نے زندہ رکھی ہے، اور ہندو مسلمان کا جو اتحاد باقی ہے ہندوستان کے اندر، یہ وہ علماء دین ہے کہ ہر جگہ پیس کا کام جا کے کرتے ہیں، دو قوموں کو ملانے کا مولانا صدیق صاحب نے کام کیا ہے۔ اور آج جو معاملہ چل رہا ہے UP کے اندر، دن دہاڑے مسلمانوں کو کھلے عام لکھ جا کے دبا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ BJP حکومت، یوگی سرکار کس طریقے سے حکومت میں آنا چاہ رہی ہے۔ پہلے تو نوجوانوں کو ان لوگوں نے لکھ جا کے دن دہاڑے ذیلوں میں بند کیا گا، بے گناہ 12 13 20 سال کے بعد UP کے اندر مسلمان رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی ذیلوں میں کٹنے کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے ان کو کوئی چیز کی معاوضہ ابھی تک آج تک بھی نہیں ملا۔ 20 25 سال ہونے کے باوجود بھی بے گناہ ہندوستان کوٹ چھوڑ رہا ہے ان کو۔
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ने के बावजूद भी ये लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही। पहले इन लोगों ने एक नौजवानों पे ट्रायल चलाया, हम लोग खामोश बैठे उस टाइम भी। उसके बाद बाहुबली MP MLA पे ट्रायल चलाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार का शेर सैयद शहाबुद्दीन को इन लोगों ने सलाखों के अंदर कोरोना के नाम पे उसका कत्ल करे। उसके बाद यूपी के अंदर अतीक अहमद की पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर दिए। उसी तरह मुख्तार अंसारी को ये लोगों ने खत्म करने की साजिश रह रहे। आए दिन इनकी कोशिश यही है किसी भी तरह इख्तिदार में आने के वास्ते मुसलमानों को दबा जाए, कुचला जाए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी आजमाइश तय है। इसके वास्ते इंशाल्लाह आप लोग तैयार है ना? हर तरीके के हमारे मुसलमानों की आजमाइश होंगी हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आजमाइश हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमे तौहीद का पैगाम पहुंचाया हम लोगों तक, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी आजमाइशें आए, परेशानियां आए। हम लोग डटे रहो, डरना है हमारे को सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत से, अल्लाह के अलावा हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। आजमाइश होंगी। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को आजमाया जा रहा है, कल हमको आजमाया जाता है, कल तुमको आजमाया जाता है। अगरचे तुम मोमिन हो तो तुम्हारी आजमाइश तय है। इसके वास्ते ज़हन बनाओ मुसलमानों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आज कलीम सिद्दीकी साहब पे ट्रायल चल रहा है, कल हमारी बारी आ सकती है, कल किसी भी की बारी आ सकती है। हिंदुस्तान के अंदर संगी सोच रखने वालों ने ये सोच पैदा करे कि मुसलमानों को जेलों के अंदर डाले और डराया जाए, धमकाया जाए, किसी तरह भी वोट हासिल करे। ये बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा है कि नौजवान पढ़े लिखे बेगुनाहों को जेलों में बंद करा जाए और कौम के जो जरखरीद गुलाम हैं, इनकी जो हाँ में हाँ भरते हैं, उनसे भी आप लोग किनारा कशी करो। जब भी कौम और मिल्लत की बात आती, आप अल्लाह को देखो, अल्लाह के अलावा इस रुए जमीन पे हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह साहबाओं ने कुर्बानी दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बानी दी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कुर्बानी दी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कुर्बानी दी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कुर्बानी दी। हम हक पे होने के बावजूद भी हमारी आजमाइश तय है। अगरचे कोई ये सोचता है कि मैं मुसलमान हूँ, साहिब इस्तेदाद हूँ, मैं MP MLA हूँ, कल बरोज़े महशर के अंदर उसकी भी आजमाइश होंगी कि किस तरह जाना है। अल्लाह ने जो दीन दिया हमारे को मजबूती से पकड़ो। वो आतिउल्लाह व आति रसूलुल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को चलने का हुक्म दिया, चाहे हमारे को आज कलीम सिद्दीकी की बारी है, कल हमारी भी बारी क्यों ना है। हमने डरना घबराना छोड़ दो। हम अल्लाह के दीन पे डटे हुए रहेंगे। हमारी आजमाइशें तय है और ये सोच ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। उरूज को ज़वाल है। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि डटे हुए रहो, एक रहो, नेक रहो और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारो। वाखिरुद्दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ मुनक़्क़द किया गया है ये मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी, जिनको यूपी हुकूमत ने जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया है, इसकी मजम्मत के लिए हम जो है ये यूपी हुकूमत और जो है सेंट्रल हुकूमत की मजम्मत करते हैं और इस बात का एहतजाज करते हैं कि आज अगर मुसलमान आज भी अगर नहीं जागे तो कल जो है ये देवबंद पर भी हाथ डाल सकते हैं और ये बरेली शरीफ पर भी हाथ डाल सकते हैं। ये जो है हमको आजमा रहे हैं। जिस तरह से बिरयानी का चावल दबा कर देखा जाता है, इस तरह से हमारे उलमाओं को जो है गिरफ्तार करके ये एक कोशिश की जा रही है कि क्या हमारे अंदर जो है ईमान बाकी है भी या नहीं भी। आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और मुनज़्ज़म बनकर जो है हर आने वाले उस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए जो है मुत्तहिद हो जाएं। हम ये जो है इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई ठीक है उन्होंने किया, उनका काम है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे लिए क्या है। यही इसी तरह से जो है पूरे मुल्क के अंदर ये साजिशें रची जा रही हैं और इन साजिशों को नाकाम करने के लिए आपका खून जो है जब तक गर्म नहीं होगा, आपका खून जो है जब तक जो है ये मुंजमद है, इसी तरह के वाक़यात होते रहे। और इन वाक़यात का एहतजाज करने के लिए आज जो इमाम काउंसिल ने यहाँ धरना आंदोलन मुनक़्क़द किया है, इसलिए मैं उनकी इन कोशिशों को जो है आगे बढ़ाते हुए आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमको जो है
आगे बढ़कर इसकी जो है एहतजाज करने की ज़रूरत है। ये पुरज़ोर तरीके से एहतजाज करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो है कलीम सिद्दीकी साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए, वरना पूरे मुल्क के अंदर जो है इस एहतजाज को बढ़ाया जाए और जो है आगे इसी तरह से जो है हम अपने हक़ को मांगें, क्योंकि ये कलीम सिद्दीकी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो जो है जमहूरी तौर पर जो है गैर कानूनी है। गौतम को मुफ्ती जहांगीर को मुफ्ती जहांगीर को योगी तेरी तानाशाही मोदी हुकूमत मोदी हुकूमत मोदी हुकूमत। बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातहू की गिरफ्तारी हम सब के लिए बाइस तशवीश है और हम सब जो है हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से अपने दिलो जान से जुड़े हुए हैं। इससे हर अमन पसंद इंसान को तशवीश हुई, सिर्फ मुसलमान ही नहीं। चुनाते हम यहाँ पर नारे देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का भी नारा यहाँ पर हम लगा रहे हैं और हजरत का मिशन भी यही है, हजरत का मकसद भी यही है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो। जिन लोगों ने हजरत को गिरफ्तार किया वो लोग नहीं चाहते कि मुल्क में शांति हो, अमन हो, सलामती हो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो, मुल्क तरक्की करे। इसीलिए उन्होंने हजरत को गिरफ्तार किया। इसके लिए आप समझिए, सोचिए कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको खुलेआम छूट दी गई है। उनकी न गिरफ्तारी होती है, न कोई अमल होता है और न कोई रद्द अमल होता है, उनको खुली इजाज़त है। और जो लोग अमन व सलामती का संदेश, अमन व सलामती का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी और उनको हिरासा करने की, खौफजदा करने की कोशिश हो रही है। मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर नौजवानों, आप सभी जानते हैं कि हम किस लिए जमा हुए हैं कि हुकूमत की बेजा बेखसूर मुस्लिम। हम खुद सोचें कि हमारे कायद उलमा ही गिरफ्तार हो रहे हैं, होगा इसलिए कि हम अभी तक खामोश बैठे हैं, कि सलाखों के पीछे रहकर बाइज्जत रिहाई हुए हैं, बाइज्जत रिहा हुए है। की जो कीमती ज़िंदगी है और हमारे उम्मत मुस्लिमा का जो मुस्तक़बिल था, जो सरमाया था, उन्हें ज़ाय कर रही है। ये उनकी एक सोच है। पहले नौजवानों को रिहा किया गया, उसके बाद हमारे जो सियासी लीडर, बेबाक लीडर थे, उनको सलाखों के पीछे डाला गया है और उनको हलाक किया गया है और उनको तरह तरह के इल्ज़ामात बेखसूर उनको लगाकर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म किया गया है, ताकि मुसलमान के अंदर कोई बेबाक कायद और लीडर ना रहे। उसके बाद उलमा इकराम है, जिन्होंने दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर दरख्त पर एक उलमा की लाश लटकी हुई थी है। इन्होंने मुल्क के लिए और अमन व शांति के लिए और इस पैगाम के लिए उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है, ताकि मुल्क आज़ाद हो और मुल्क में अमन व शांति रहे। हम भी उन्हीं की औलाद में से है। अगर ये मुसलमानों को बेखसूर गिरफ्तार करते हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो बेबाक लीडर हो, चाहे वो हमारे कायद उलमा हो, चाहे वो अकाबिर हो, चाहे वो कोई भी हो, आम शहरी भी अगर मुसलमान है, अगर बेकसूर उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो हमारा फ़र्ज़ मनसबी ये है हमारा फ़र्ज़ कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़। मज़हब की तशरीह कर सकते हैं और हमारा मज़हब अगर किसी को पसंद आता है तो वो अपना सकता है। तो ये बात ज़बरदस्ती की नहीं है, लेकिन ये बात जो है तो हमारे मुसलमानों को डराने की है। इस वजह से हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मजम्मत करते हैं यूपी हुकूमत का और जो है तो मरकज़ी हुकूमत का, कि उन्होंने हमारे कायदीन को जो है तो गिरफ़्तार किया है। इस मामले में जमात इस्लामी ने भी बड़ा इक़दाम उठाया है और हमारे मौलाना जो है सो कलीम सिद्दीकी साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए, इस तरह का उन्होंने बयान जारी किया है। नई दिल्ली से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की UPA ATS की जानिब से गिरफ़्तारी की खबर मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए तशवीशनाक है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम पुरअमन तरीक़े से एहतजाज करें।
24 सितंबर को परभनी के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपना कॉर्नर यहाँ से ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से एक निवेदन यहाँ पर परभनी ज़िला अधिकारी इनके ज़रिए से देश की हुकूमत को गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा है और जिसमें ये मांग की जा रही है कि जो गुज़िश्ता दिनों में उत्तर प्रदेश में उलमा इकराम की जो गिरफ़्तारियाँ हुई है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए और अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में परभनी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मुसलमान रास्तों पर उतरेंगे और लोकशाही तरीके से जो संविधान ने दिए हुए अधिकार है उन तरीक़ों से धरने आंदोलन करेंगे और उलमाओं पर जो ये जुल्म हो रहा है बग़ैर किसी कसूर के उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है इसके विरोध में रास्ते पर आएंगे। और जैसा कि देश के जो हालात आज देखने को मिल रहे हैं 2022 करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव है इसलिए मुसलमानों पर ये दबाव है और मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है क्योंकि जब तक ये लोग हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक इनको चुनकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि विकास के नाम पर पूरे 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश भर में फेल हुई है। कोरोना महामारी में उस पर इंतज़ाम और काबू पाने पर फेल हो चुकी है। महंगाई आसमान को छू रही है और सबसे ज़्यादा अगर कोई महंगाई पर और धरने आंदोलनों में कोई कौम आगे आती है वो मुसलमान है, इसलिए पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देश भर की जनता को इस हिटलर शाही के विरोध में आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से संविधान का गला घोटा जा रहा है, संविधान को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है और इन तमाम बातों को देखते हुए अगर कोई दूसरी कौम ये सोचती है कि ये तो मुसलमानों का अपना मामला है तो कल उनका भी नंबर आएगा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से कहा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।